Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. This is Progress with Prachi, and in this series, we are studying class 12th NCERT, People, India, People and Economy. And in this series, we have already completed the first 4 chapters of this book, and today we would be starting with chapter number 5. So I would request you that if you are new to this series, please watch the previous videos. As this is the new chapter, you can start with this one as well. But you should still complete the earlier videos so that you have the complete idea. There is a parallel series going on class 11th NCERTs on fundamentals of physical geography. So if you are preparing for competitive examination, so that part of the book, that is your physical geography, forms a really very important part of your syllabus. Today we will be talking about land resources and agriculture. So this land and agriculture. This topic is one of the favorite topics of UPSC examinations. If you know about the civil services examination, if you have seen the paper, so this agriculture topic, they ask tons and tons of questions from this portion. So this is a very important chapter and this is a very important portion as well. And it is a very huge chapter too. So we would take around 5 to 6 classes to complete this chapter holistically, and I would try my best to complete it in the best manner possible. One more thing, for the people who are currently in class 12, so last year this chapter was not the part of the syllabus, which means this was cut it out from the syllabus, but the updated syllabus is not out yet, and according to the syllabus which was there, there is no changes. So for now the syllabus is very much a part of your examination. That is why we would be studying it in case CBSE decides to cancel it in further. So it's very easy to just eliminate it. So let's start with chapter number 5, that is land resources and agriculture. In this chapter we will be first talking about what is land. लैंड कितने तरीके के होते हैं, what are the types of land, what are the different uses in which lands are put to, and क्यों किसी भी लैंड पे प्रेशर पड़ता है, क्यों लैंड के अलग अलग फीचर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. फिर हम देखेंगे इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड, जो खेती बाड़ी करने का लैंड है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है. हम देखेंगे इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स, आपने सुना होगा खारिफ, राबी, जैद, ये कुछ जो क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं तो ये कैसे इंडिया में चलते हैं. फिर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे. Then we would be seeing अलग-अलग crops including wheat, ज्वार, बाजरा, maize, pulses, oil seeds, groundnut, तूर, rape seeds, mustard, other, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे धीरे धीरे करके. So in this chapter there would be a lot of facts, because आपको सारी crops के लिए कुछ ना कुछ facts होंगे, कुछ ना कुछ features होंगे हर crop के, जो आपको याद रखने पड़ेंगे. सो आपने देखा होगा कि जो भी लैंड है आपके आसपास, जितनी भी ज़मीन है, उस पर कुछ ना कुछ हो रहा है. आपका घर बना है, कहीं पे आपका स्कूल बना है, कहीं पे खेती बाड़ी हो रही है, कहीं पे किसी ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, कहीं पे दुकान बनी हुई है. सो द लैंड अराउंड यू, एवरी पार्ट ऑफ लैंड जो आपके आसपास है, वो किसी ना किसी यूज़, किसी ना किसी इस्तेमाल के लिए रखा गया है. कहीं पे रोड्स बनाई जाती हैं, कहीं पे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं. तो हम लैंड को 3 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आपकी शॉप्स हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई. कुछ रेसिडेंट्स के लिए, यानी कि आप अपने घर बनाते हो उस लैंड पे. एंड देन फॉर रिक्रिएशन, आपने होटल बनाया, आपने कुछ गेमिंग सेंटर बना दिया, मॉल्स बना दिए. सो ये क्या है, हम घरों को, हम लैंड को प्रोडक्शन, रेसिडेंस और रिक्रिएशन, 3 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. दस द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल, आपने कुछ भी जगह, आपकी स्कूल हो गया, रोड जिस पे आप ट्रैवल करते हो, पार्क्स जहाँ पे आप खेलते हो, फील्ड्स जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, ये डिफरेंट यूजेस हैं जिनके लिए लैंड को यूज़ किया जा रहा है. डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके लिए लैंड को यूज़ किया जा रहा है. नाउ लैंड यूज़ कैटेगरीज. लैंड यूज़ कैटेगरीज का मतलब क्या हो गया कि लैंड यूज़ करने के अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं. वो क्या होता है? सो लैंड रिकॉर्ड्स, जितने भी हमारे लैंड यूज़ का मतलब आ गया जो ज़मीन इन यूज़ है, लैंड का इस्तेमाल को हम क्या बोलेंगे, लैंड यूज. इस रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करता है? लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट. वन क्वेश्चन, वन होमवर्क फॉर यू, प्लीज फाइंड आउट दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. क्या आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है, कि आपके पास ज़मीन है, आपका जो घर है, सरकार उससे आपको नहीं हटा सकती, इज राइट टू प्रॉपर्टी अ फंडामेंटल राइट और नॉट? इफ येस,
then buy, and if no, then buy. So find it out. Okay. So the land use categories add up to reporting area, which is somewhat different from the geographical area. तो जनरली जो लैंड यूज होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग एरिया और एक होता है जोग्राफिकल एरिया. अभी रिपोर्टिंग एरिया और जोग्राफिकल एरिया में मेजर फर्क क्या होता है? जोग्राफिकल एरिया तो सारा हो गया, पूरा इंडिया आपके जोग्राफिकल एरिया में आ गया, बट क्या आप पूरे इंडिया में सर्वे कर पाते हो? क्या आप माउंटेन्स के बियॉन्ड, माउंटेन्स के ऊपर, आसपास हर जगह आपके सर्वेज चल रहे हैं, आपकी रिसर्च चल रही है? नहीं. बहुत ऐसे नक्सल एरियाज हैं जहाँ पे जो आपके इंडिया का पार्ट है, बट वहाँ पे एक्चुअली में आप सर्वे नहीं करने जाते हो, वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है. सो रिपोर्टिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ के एक्चुअली में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं. जोग्राफिकल एरिया जनरली आपका पूरा जोग्राफिकल एरिया. सो सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? जो सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जोग्राफिकल एरिया की मेजरमेंट करता है कि कितना पूरा टोटल एरिया हमारे पास क्या है, उसके बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वगैरह के बारे में. सो द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट, यानी कि रिपोर्टिंग एरिया और जोग्राफिकल एरिया के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो फॉर्मर है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द लैंड रेवेन्यू एस्टिमेट्स, और जो लैटर है वो चेंज नहीं होता. सिंपल. मैंने अभी आपको बताया कि जो जोग्राफिकल एरिया, जो भी इंडिया का जितना एरिया है, जितनी उसकी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, टोटल मिला के आपका जोग्राफिकल एरिया हो जाएगा. रिपोर्टिंग एरिया वो एरिया होगा जहाँ पे आपकी सरकार रिपोर्टिंग कर रही है, जहाँ पे जाके वो वहाँ से डिटेल्स लेके, रिकॉर्ड्स लेके आ सकती है, उसको हम रिपोर्टिंग एरिया बोलते हैं. तो रिपोर्टिंग एरिया आगे पीछे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आज से 20 साल पहले आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप माउंटेन एरियाज़ में जाएं और वहाँ से वहाँ के गाँव वालों से मिलके वहाँ की डिटेल्स लेके आएँ. आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप वहाँ जाके चेक करके आएँ कि क्या वहाँ के खेतों में कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, कि खेत एग्रीकल्चर करने के लिए फिट भी हैं या नहीं. बट आज आपके पास टेक्नोलॉजी है. तो जोग्राफिकल एरिया पहले भी था, पहले भी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट आपके पार्ट में थी. अभी पहले पर रिपोर्टिंग एरिया नहीं थी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट. क्यों नहीं थी? क्योंकि तब हमें वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी नहीं आती थी, हमें नहीं पता था क्या क्या फीचर्स होंगे. अभी टेक्नोलॉजी की वजह से वो रिपोर्टिंग एरिया एक्सटेंड हो गया है. उनको कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जो रिपोर्टिंग एरिया होता है वो एक्सटेंड हो सकता है. जोग्राफिकल एरिया हमेशा जनरली मोर और लेस फिक्स्ड रहता है. तो जो लैंड यूज़ की कैटेगरीज की बात करें हैं, यानी कि जो लैंड यूज़ है वो किन किन चीज़ों में आप ज़मीन को, लैंड को यूज़ करते हो. सबसे पहला आता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में वही दो होते हैं, इसमें भी आप बहुत ध्यान से सुनिए. आपको जो डेटा दिया जाता है आपकी बुक्स में कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो गया है 10 से 20% हो गया. अरे हम तो बहुत खुश, अरे वाह हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया कि फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट बढ़ेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, खाना मिलेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगा. नो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. एक होता है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर. क्या होता है? एक्चुअल फॉरेस्ट कवर. और एक होता है नॉर्मल फॉरेस्ट. तो ये जो नॉर्मल फॉरेस्ट होता है और जिस चीज़ का आपको डेटा मिलता है वो फॉरेस्ट होता है जो सरकार रेगुलेट करती है. यानी कि मैंने ऐसा बोला कि मैं 10 एकड़ में से 5 एकड़ की ज़मीन पे फॉरेस्ट है और बाकी की 5 एकड़ पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो. तो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना हुआ? 5 एकड़. एरिया कितना हुआ? 5 एकड़ जिस पे आप खेती कर रहे हो. कल को मैंने ऐसा बोल दिया कि हम 5 एकड़ की जगह 7 एकड़ ज़मीन पे, यानी कि 2 और ऐड कर देंगे फॉरेस्ट में, चाहे वहाँ पे फॉरेस्ट हो क्या ना, क्योंकि मैंने बोल दिया है, मैं गवर्नमेंट हूँ और मैंने बोल दिया है कि यहाँ पे फॉरेस्ट होना चाहिए, तो वो फॉरेस्ट में काउंट हो जाता है. सो वही कह रहे हैं कि द लेटर इज द एरिया. जो फॉरेस्ट है ये वो एरिया होता है जो सरकार डिसाइड करती है कि ये फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. और अगर सरकार ने अभी डिसाइड कर दिया कि 5 की जगह 7 एकड़ ज़मीन होगी फॉरेस्ट एरिया में, कितना हो गया? 70%. पहले 50% एरिया था, अब 70% एरिया हो गया. पर उस 2 एकड़ जो आपने ऐड किया वो आज भी उस पर खेती ही हो रही है, आपने बस पेपर में डाल दिया है कि वहाँ पे फॉरेस्ट बने. इसकी वजह से रिकॉर्ड्स में इंक्रीज आ जाता है. सो दिस लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर कंसिस्टेंट विद द लैटर डेफिनेशन. तो जो हमारे लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स होते हैं वो दूसरी वाली डेफिनेशन के साथ मैच करते हैं, यानी कि जो सरकार ऊपर नीचे कर सकती है उस डेफिनेशन के साथ. दस देयर मे बी एन इंक्रीज इन द कैटेगरी. दस फॉरेस्ट इंक्रीज हो सकता है बिना एक्चुअली में फॉरेस्ट के इंक्रीज हुए.
उनका कहने का मतलब ये है कि मैंने बोल दिया फॉरेस्ट इंक्रीज हो गया मतलब फॉरेस्ट इंक्रीज हो गया, बट असलियत में वहाँ पे आज भी 5 एकड़ ज़मीन पे खेती ही हो रही है, फॉरेस्ट नहीं बढ़ा है 2 एकड़। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। नेक्स्ट आपके बैरन और वेस्टलैंड आते हैं। ये वो ज़मीन है जिसको वेस्टलैंड कैटेगराइज कर दिया है। जनरली हिली रीजन्स, हिली टेरेन्स, डेजर्ट्स, रेवाइंस, जो बैडलैंड होता है, नॉर्मली यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करने के हमारे पास बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे हम यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। सो ये एक बैरन और वेस्टलैंड ज़मीन पड़ी हुई है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, बहुत आसानी से नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सारी ज़मीन जिस पे खेती नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ हो नहीं सकती है, बट आपने उसको कुछ और काम के लिए यूज़ कर दिया। आपने अपनी इंडस्ट्री बना ली, घर बना लिए, कॉलोनीज बना ली, क्रिकेट स्टेडियम बना लिया, कुछ भी बना लिया, शॉप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कैनाल्स, तो इसको हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। और जैसे जैसे हमने देखा कि हमारी जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी कि हमको मोर इंडस्ट्रीज़ बनानी है, हमको मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ करनी है, हमको सर्विसेज इंक्रीज़ करनी है, हमको ऑफिसेज वगैरह ज़्यादा बनाने हैं, तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम इस सेक्टर में इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये जो लैंड यूज़ का कैटेगरी है नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, ये इंक्रीज़ हो रहा है ऑटोमेटिकली। आपको ज़मीन तो इतनी ही है, आज भी ज़मीन इतनी ही है और कल भी ज़मीन इतनी ही रहेगी। आपने पहले इतने एरिया में एग्रीकल्चर करा था, इतने एरिया में मान लो ये आपने ये लाइन, आप इतने एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे थे और इतने एरिया में आपने सॉरी उल्टा, आप यहाँ इतने एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे थे, नाउ आप इतना एरिया आपने घर वगैरह बनाने के लिए, कैनाल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया हुआ था। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, इकोनॉमी में चेंज आया कि भाई सेकेंडरी सेक्टर करो, टर्शरी सेक्टर करो, तो आपने इंक्रीज करके क्या कर दिया कि चलो एग्रीकल्चर को ना यहाँ तक करते थे और ये अब सारा एरिया हम नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए रख देते हैं। दिस इज द रीज़न कि जो नॉन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स यानी कि जनरली जो पंचायत होती हैं उनके पास ऐसी एक ज़मीन होती है बड़ी बड़ी सी, जो खेत नहीं होते हैं, ग्रास लैंड, यहाँ पे ऊंची ऊंची घास होती है जो गाय भैंस को चराने के लिए यूज़ करी जाती है। जनरली ये ग्रेजिंग एरियाज होते हैं, पंचायत या फिर गवर्नमेंट ओन करती है। इनको हम CPR बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? CPR, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, मतलब ये सबके होते हैं। मेरे पास गाय है, मैं भी गाय ले जा सकती हूँ, अमन के पास गाय है, अमन भी गाय ले जा सकता है, रिया के पास गाय है, रिया भी गाय ले जा सकती है। ये दोनों मेरे कुछ नहीं लगता है, जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, ओके। सो ओनली स्मॉल, ये और जनरली ये लैंड प्राइवेटली ओन्ड नहीं होता है। कोई भी प्राइवेट ओनर ऐसा अपनी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ देगा कि यहाँ पे सिर्फ मेरी गाय भैंस चलेगी। इट इज़ नॉट हैपनिंग इन इंडिया, इट हैपन्स आउटसाइड द वर्ल्ड बट नॉट इन इंडिया, क्योंकि हम लोग अब आज भी काफ़ी डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे। फिर आता है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। अभी आपको एप्पल उगाना है, आपको ऑरेंज उगाना है, उसके लिए आपको पेड़ चाहिए, आपको फार्म्स चाहिए होते हैं जहाँ पे ट्री की ग्रोथ होती है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि आप सारे ट्रीज़ एक साथ ऐसे चिपका के एकदम साइड में लगा दोगे, यू नीड सम डिस्टेंस, दूर लगाते हो ताकि अच्छे से सारी ट्रीज़ की ग्रोथ होलिस्टिकली हो। तो ये लैंड ऑर्किड्स और फ्रूट ट्रीज वगैरह के लिए होता है और जनरली प्राइवेटली ओन्ड होता है। कोई भी पब्लिक लैंड पे ऑरेंज का पेड़ लगा नहीं देगा, तो दैट इज़ जनरली प्राइवेटली। फिर होता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये क्या है? ये वो ज़मीन है जिस पे खेती हो सकती है पर ये पिछले 5 साल से खाली पड़ा हुआ है। आपने 5 साल से इसमें कोई खेती नहीं करी है तो इसलिए खाली पड़ा है। इतने साल से खाली पड़ी होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लूज हो जाती है, बट आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस यूज़ कर इसको सही कर सकते हो और इस ज़मीन पर खेती कर सकते हो। फिर हो गया आपका करंट फैलो। करंट फैलो मतलब 1 साल से कम के लिए ये ज़मीन खाली पड़ी हुई है। जनरली ये किया जाता है ताकि ज़मीन अपनी फर्टिलिटी को वापस से ताकि लेफ्ट फॉर टूवर्ड फैलोइंग इज ये प्रैक्टिस है ज़मीन को रेस्ट देने के लिए कि ताकि वो अपनी जो फर्टिलिटी खो गई थी नेचुरली रिवाइव हो जाए, तो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है फैलो अदर देन करंट फैलो, मतलब 5 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा, मान लो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आपने अपनी ज़मीन को खाली रखा हुआ है, तो ना तो अभी इसमें एकदम चीज़ें ख़राब हुई हैं और ना अभी सिचुएशन एकदम बढ़िया से अच्छी है। सो यहाँ पे इसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड से थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी कर देते हैं, मेजर कुछ खास फर्क।
और फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा नेट सोन एरिया है, यानी कि वो इलाका जिसमें आप एक्चुअल में खेती बाड़ी करते हो, द एरिया विच इज पुट टू एग्रीकल्चर। सो ये कुछ हमने 9 टाइप्स ऑफ लैंड यूज पढ़े कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा लैंड है, वो 9 डिफरेंट तरीकों के लिए यूज़ किया जाता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फॉरेस्ट, barren and uncultivated या फिर wasteland, barren and wasteland, land put to non-agricultural use, area under permanent pastures and grasslands, area under miscellaneous trees, crops and groves, cultivable wasteland 5 साल वाला, current fallow 1 साल से कम वाला, fallow other than current fallow 1 साल और 5 साल के बीच वाला, and your net sown area जिसमें आप एग्रीकल्चर करते हो। So these are the 9 types of land uses जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। अभी क्या है, जो 1 एकड़ की ज़मीन जितनी पहले खेती बाड़ी के लिए यूज़ करी जाती थी, सेम खेती बाड़ी के लिए आज की डेट में यूज़ नहीं करी जाती। सो लैंड यूज़ करने में भी चेंज आ रहा है, देयर इज़ अ चेंज, कभी कुछ ज़्यादा हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। अभी मैंने एक चीज़ क्या बोली, लैंड उतना ही है आपके पास, लैंड इंक्रीज नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम चाइना इतने शातिर नहीं है कि हम अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लें, मिट्टी बड़ी थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मिट्टी डाल देते हैं और ज़मीन एक्सटेंड कर लेते हैं। वी वोंट डू दैट, वी कांट डू दैट। सो दैट इज़ अनएथिकल, द वर्ल्ड इज़ फॉर एवरीबडी। तो हमारे पास लैंड इतना ही है, दिस इज़ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड वी हैव। अभी आपको किसी चीज़ को इंक्रीज करना है तो आपको किसी चीज़ को कम करना पड़ेगा। आपके पास 2 पेड़ उगाने की परमिशन, या तो आप 1 एप्पल 1 ऑरेंज उगा सकते हो, दोनों एप्पल दोनों ऑरेंज उगा सकते हो, दोनों ऑरेंज 0 एप्पल उगा सकते हो। ये आपके पास सिचुएशन है, आपको चूज करना है। तो लैंड का भी यही थिंग है, वो लिमिटेड है, उसकी अमाउंट फिक्स्ड है, आप अपनी नीड्स के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते हैं। सो जो लैंड होता है वो इफेक्ट होता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपकी कंट्री को प्राइमरी एक्टिविटीज़ करनी है तो वो ज़्यादातर एरिया को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेगी। आपकी कंट्री को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ करनी है, इंडस्ट्रीज़ बनानी है, तो सब जगह खेती बाड़ी निकाल के इंडस्ट्रीज़ लगा देगी। सर्विस सेक्टर खोलना है तो स्कूल बना देगी, ऑफिस बना देगी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आपका लैंड यूज़ डिपेंड करता है। लैंड लाइक मैनी अदर नेचुरल रिसोर्सेज फिक्स्ड होता है, चीज़ें बता दी, इसका एरिया जो होता है फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है। सो एट दिस स्टेज वन नीड्स टू अप्रिशिएट 3 तरह के चेंजेस हो सकते हैं, इकोनॉमी में चेंजेस जिनके कारण लैंड चेंज होगा। तीनों तरह के चेंज इकोनॉमी में होंगे, पर उनकी वजह से लैंड पर इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो साइज ऑफ इकोनॉमी। साइज ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि पहले जिस इकोनॉमी को 10 लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस करना था, आज सेम इकोनॉमी को 20 पीपल के लिए खाना प्रोड्यूस करना है, विच मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। So in terms of value for all the goods grows over time as a result of increasing size of economy। increase होने का मतलब है जो इकोनॉमी पहले 20 पीपल के लिए प्रोडक्शन कर रही थी, आज 40 के लिए कर रही है, कल 60 के लिए करेगी, परसों 80 के लिए करेगी। ज़मीन 50 है फिक्स्ड, 50 पे आप 20 के लिए कर लो, 40 के लिए कर लो, 100 के लिए कर लो, ज़मीन इंक्रीज नहीं हो रही। साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, इनकम लेवल इंक्रीज होने की वजह से इकोनॉमी इंक्रीज हो सकती है। टेक्नोलॉजी अच्छी कर ली आपने, फैक्टर्स अच्छे कर लिए, इन सारे कारणों की वजह से आपकी साइज ऑफ इकोनॉमी पे इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जो लैंड है उस पर प्रेशर इंक्रीज होता है, मार्जिनल लैंड वुड कम अंडर यूज। और वो लैंड जो शायद बहुत अच्छी खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, उनको भी हमने अभी यूज़ में ले लिया कि भाई खाना पेट भरना है लोगों का, इंक्रीज करो इसको, इस पर भी खेती करो, जो उग रहा है वो होगा, बाजरा उग रहा है बाजरा होगा, जूट कुछ भी होगा। That was because of the size of the economy। Secondly आती है the composition of economy, जो चेंज होता है over the time, काफ़ी समय लगता है। In other words, अगर आपकी इकोनॉमी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे फोकस करती है, जनरली फोकस क्या करती है, जनरली टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करना बहुत आसान होता है और बहुत फास्ट स्पीड पे ये ग्रो करता है। आप एक इंडस्ट्री बनाओगे, इंडस्ट्री फायदेमंद होगी, दूसरी बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब 100 इंडस्ट्री बन गई 1 साल के अंदर। बट इट्स नॉट द सेम विद द लैंड। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज, और ऐसा चेंज इंडिया जैसी कंट्रीज में काफ़ी कॉमन है। इतने सारे लोगों ने देख रहा है भाई इंडस्ट्री बहुत मस्त तरीके से चल रही है, चलो इंडस्ट्री खोल लेते हैं। आज ऑफिस बहुत मस्त तरीके से चल रहे हैं, चलो नया ऑफिस बना लेते हैं।
So this type of change is common in developing countries. This process results in a gradual shift of land from agricultural uses to non-agricultural uses. तो gradually हम वो land जो हमने agriculture खेती बाड़ी के लिए यूज़ किया हुआ था उसको हम यूज़ खाली पीली करके हम नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में यूज़ करने लग जाते हैं. आप ऑब्जर्व करोगे कि देयर सच चेंजेस आर शार्प अराउंड लार्ज अर्बन एरियाज. द एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पसेज. ये बोल जो चेंजेस हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं अराउंड दी लार्ज अर्बन एरियाज और एग्रीकल्चर लैंड बिल्डिंग पर्पसेज के लिए यूज़ करा जाता है. थर्डली, दो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ रिड्यूसेज ओवर टाइम. दो जो जितना आज की डेट में प्राइमरी सेक्टर सेम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है जो आज से 50 ईयर्स पहले कर रहा था. 50 ईयर्स अगो प्राइमरी सेक्टर वाज द डोमिनेटिंग सेक्टर इन आवर इकोनॉमी. आज की डेट में टर्शरी सेक्टर इज डोमिनेटिंग. सो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो सकता है टाइम के साथ, पर जो एग्रीकल्चर पे प्रेशर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे प्रेशर है, वो कभी कम नहीं. कहने का मतलब कि हो सकता है आपने ये लैंड, इतना सारा लैंड आपने खेती बाड़ी के लिए यूज़ करा हुआ था, अब आपने सिर्फ इतना यूज़ किया, बट खेती तो करनी है ना, खाना तो चाहिए. नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट फूड. तो एक्चुअली पे ज़मीन पे आप प्रेशर कम कर सकते हो, पर एग्रीकल्चर एज अ होल पर प्रेशर ख़त्म नहीं हो सकता. और उस प्रेशर तो रहेगा, उस पर आपने ज़मीन और ले ली तो आपने प्रेशर को और इंक्रीज कर दिया. द रीजन्स फॉर कंटिन्यूड प्रेशर और एग्रीकल्चर लैंड आर, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन होती है जैसे जैसे इंक्रीज होती है वो सेम अमाउंट पे डिक्लाइन नहीं होती है जिस अमाउंट पे एग्रीकल्चर सेम अमाउंट पर इंक्रीज नहीं होती है जिस अमाउंट पर एग्रीकल्चर. जैसे हमने माल्थूजियन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो पॉपुलेशन होती है वो मल्टीप्लाई होती है और जो फूड ग्रोथ होती है वो ऐड होती है. द नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. और वो नंबर ऑफ पीपल जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जिनको फीडिंग करना होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जिसका ध्यान रखना होता है, वो इंक्रीज होते जा रहे. वही मैंने बोला ना, आपने भले ही ज़मीन कम कर दी हो पर लोग नहीं कम हुए हैं, लोगों को आज भी खाना चाहिए. तो एग्रीकल्चर पे जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रहता है. तो अब आपको तीनों चेंजेस समझ में आए होंगे. पहला, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से. दूसरा, इकोनॉमी के शिफ्ट की वजह से आपने प्राइमरी सेक्टर से आप टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करने लग गए. और थर्डली, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे जो प्रेशर होता है वो ऊपर नीचे होने लगता है, जिसकी वजह से जो लैंड यूज़ है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा. इंडिया हैज़ अंडरगॉन मेजर चेंजेस विद इन दी. हमारी इकोनॉमी में पिछले 4 to 5 डिकेड यानी लास्ट 40-50 ईयर्स में बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं. एंड दिस हैज़ इन्फ्लुएंस दी लैंड यूज चेंजेस इन दी कंट्री. और इसकी वजह से हमारे लैंड यूज चेंजेस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है. ये जो चेंजेस थे बिटवीन 1960 to 61 एंड 2008 to 2009, ये टेबल है उसमें दिए हुए हैं. यू कैन सी दी टेबल. सो देर आर 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. अगर आप पहले इन फिगर को समझने से पहले, सबसे पहले द परसेंटेज शोन इन दी, जो भी हमको एरिया है ये रिपोर्टिंग एरिया है. रिपोर्टिंग एरिया का मतलब वो एरिया जिसको हम जाकर देख पाए. जोग्राफिकल एरिया सारा एरिया होता है, हमने रिसर्च किस पे करी, रिकॉर्ड किस पे निकाला, वो रिपोर्टिंग एरिया होता है. सेकेंडली, रिपोर्टिंग एरिया कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है. कांस्टेंट ओवर द टाइम. द डिक्लाइन इन रिलेटिव एरिया धीरे धीरे करके कांस्टेंट हो रहा है. कैसे कि पहले आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी माउंटेन्स में जाके सर्च करने. अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जनरली रिलेटिव एरिया कैन नेवर बी इक्वल टू जोग्राफिकल एरिया. कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे आपकी लैंड के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको आप कभी भी कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते. सो इट कैन बी नेवर बी इक्वल, बट इट कैन बी वेरी क्लोज. हो सकता है अगर जोग्राफिकल एरिया 100 है तो रिपोर्टिंग एरिया आपका 99 हो जाए, 98 हो जाए, 97 हो जाए, बट इट कैन नॉट बी 100. तो जो रिपोर्टिंग एरिया होता है क्योंकि वो जनरली काफ़ी टाइम से कांस्टेंट होने लग गया है, तो इसकी वजह से अगर किसी चीज़ में इंक्रीज़ होगा तो दूसरी चीज़ में डिक्रीज़ होना इज़ वेरी नेचुरल. इस टेबल में काफ़ी कुछ दिया हुआ है. इस टेबल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिस विच इज़ वेरी important for us to understand. Time is over for today. I guess that's it for today. I don't want it to be very heavy for you. So we would be continuing this chapter in the upcoming classes. And as already told you, if you like the session, please hit the like button. Do subscribe the channel
and leave your comments, compliments, and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.